discuss about our first chapter, that is some p block elements. So p block elements, as you know, that in periodic table there are s, p, d and f block elements. So it start with group 14, group 15. Okay, so the p block elements, first we have to discuss about group 15 elements. So what is group 15 elements? There are two other groups in p block which we have discussed in last class. So today we will discuss about group 15 elements. That group 15 elements are, what are they? These are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. So we one by one discuss about their physical properties, chemical properties and different things of these particular elements. So nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Nitrogen, as you know, is found in atmosphere in largest amount, okay, as a gas. So what is the electronic configuration of group 15? As 15 has 285, means 2 electron in S1s2 and 8 electron in 2s2 2p6. Then we have to go for like ns2 np3. Okay, so electronic configuration of group 15 element is after helium ns2 np3. Okay, so for nitrogen it's 2s2 2p3, for phosphorus is 3s2 3p3, n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी भी, arsenic is 4s2 4p3, antimony 4d10 इज देयर. डी कॉन्फ़िगरेशन को हमने दिखाना है जिसके अंदर क्या है, आपके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, डी फुलफिल्ड है, 5s2 5p3. और बिस्मिथ 4f14, f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5d10 6s2 6p3. तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी क्या है, ns2 np3, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन 2s2 2p3, phosphorus 3s2 3p3, arsenic 4s2 4p3, antimony we have to include 4d10 and for bismuth we have to include 4f14 and 5d10, that is 5s2 5p3 for antimony, for bismuth 6s2 6p3. So these all are electronic configuration. You people must know and you people have learned about these particular electronic configuration in your last classes in structure of atom, in which there is how the number of electrons are filled, how about rules is there, Hund's rules of maximum multiplicity, Pauli's exclusion principle is there. Okay, next is what do we understand by atomic size? So how the group 15 elements atomic size is increases in a group or decreases in a group, what are the trend in period, what is the trend in group, which we have to discuss. Atomic size as compared to group 14, they are smaller in size. As we know that if we move in the period, अगर आप पीरियड में मूव करते हैं, मतलब हॉरिजेंटली मूव करते हैं, तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है. एंड अगर हम हॉरिजेंटली नहीं वर्टिकली मूव करते हैं, ग्रुप में मूव करते हैं, तो साइज इंक्रीज होता है. तो ग्रुप 14 के कंपैरिजन में इनका साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा. वाई? अब साइज कम क्यों होता जाता है पीरियड में? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजेस, सो द न्यूक्लियर चार्ज इज आल्सो इंक्रीजेस. सो व्हाट इज द ट्रेंड इन ग्रुप? ग्रुप में साइज इंक्रीज होता जाता है एज द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजेस. जैसे हमने बात करी नाइट्रोजन के लिए 2s2 2p3 और फिर फॉस्फोरस के लिए 3s2 3p3 था. नंबर ऑफ सेल मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंक्रीजिंग, एन वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स आपके पास क्या इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है. व्हाट इज द ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी? दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. अब आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी. ठीक है. अब ग्रुप 15 की, जैसे कि 14 का जो साइज है वो ज़्यादा होता है, 15 का कम होता है. ओके, तो 15 का साइज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. और आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. आयोनाइजेशन एनर्जी एंड साइज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. जैसे जैसे आपके पास साइज जो है बढ़ेगा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ as the size of these group 15 members are smaller,
जैसा जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगी भी। अब नाइट्रोजन इज स्मॉलेस्ट, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन बिस्मिथ। एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को Sb इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर एंटीमनी। एंटीमनी का केमिकल फॉर्मूला Sb होता है अभी। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। नेक्स्ट इज मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर भी साइज पे भी डिपेंड करता है। ग्रुप 14 एलिमेंट अगर जिसका साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन उससे इजीली रिमूव हो सकता है, इलेक्ट्रॉन से इजीली रिमूव हो सकते हैं, तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनना आसान है, तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। अब इस केस में इनका साइज कम है ग्रुप 14 से, तो ये लेस मेटालिक रहेंगे। किससे? ग्रुप 14 से। अब ग्रुप में क्या होता है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजीली है। तो बिस्मिथ के सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर, देन एंटीमनी, देन आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। सो एज द साइज इंक्रीजेस, ionization energy decreases, and if the ionization energy decreases then the metallic character increases. Okay, now we move on to melting point and boiling points. So melting point depend करता है किस पे, टाइप और नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास किस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, वंडरवाल फोर्सेस। अब वंडरवाल फोर्सेस जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे वंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है। नाउ बॉइलिंग पॉइंट साइज बढ़ रहा है तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, बिस्मिथ का सबसे ज़्यादा, फिर एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। मेल्टिंग पॉइंट पहले तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, फॉस्फोरस और आर्सेनिक तक बढ़ेगा, फिर डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज क्यों हो रहा है एंटीमनी और बिस्मिथ के केस में, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है भाई आउट ऑफ 5। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, तो जो S2 इलेक्ट्रॉन थे ना हमारे NH2NP3, जो S2 इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक के केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट उनका ज़्यादा होता जाता है। लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ के केस में कम होता है। क्यों? द रीज़न बिहाइंड दैट इज क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं फॉर मेकिंग बॉन्ड और फॉर एनी काइंड ऑफ अ रिएक्शन। इसको हम भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बोलते हैं। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है, जैसे जैसे आप ग्रुप में जाते हैं वैसे वैसे जो आउटर मोस्ट S2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर था, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर था, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर्ट हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ओके, सो कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है भाई जिसमें जो एलिमेंट है वो अपने खुद के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे आपके पास अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस एज ए P4 एग्जिस्ट करता है, तो वो अपने पास साथ बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन खुद के साथ बॉन्ड बनाता है, N2 फॉर्मेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए इनका, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से शो करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 रहेगा या +5 रहेगा। ओके, सो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ +3 शो करता है और +5, -3 -5 भी हो सकता है, कैल्शियम नाइट्राइड के साथ -3, पिरिडीन क्या है इसमें -2, ये +3 भी शो करता है। ओके, अब इसमें कैल्शियम फोस्फाइड में देख लीजिए, दैट इज -3। बिस्मिथ +3 शो करता है ड्यू टू इनर्ट फेयर इफेक्ट। बिस्मिथ +3 इफेक्ट शो करता है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते भी, इसीलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। एक ही सिंगल कंपाउंड है जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज बिस्मिथ पेंटाफ्लोराइड। ओके, अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन कभी भी ऐसे कंपाउंड नहीं बनाता जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अब इसका रीज़न क्या है, अब भाई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स आपको 5 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा जिससे आपके पास जो बॉन्डिंग है वो पार्टिसिपेशन हो बॉन्डिंग में। अब नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट डी ऑर्बिटल मीन्स
अब अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होते बॉन्डिंग हो जाती, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो एक्साइटेशन नहीं होती, सो मैक्सिमम जो कोवैलेंसी है नाइट्रोजन की क्या हो सकती है, वो +4 ही हो सकती है, मैक्सिमम 5 नहीं हो सकती। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें भी, ये बहुत बारी पूछा जाता है क्वेश्चन, वाई नाइट्रोजन डू नॉट शो कोवैलेंसी ऑफ +5। द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज नाइट्रोजन कैन ओनली form +4 कोवैलेंसी बिकॉज देर इज नो प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, अगर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते तो वो बना लेता भाई, +5 कोवैलेंसी शो करता। अब नाइट्रोजन का एनामलस बिहेवियर, एनामलस बिहेवियर का मतलब होता है कि नाइट्रोजन जो अपने ग्रुप के और एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स से अलग बिहेवियर शो करता है। अलग बिहेवियर मतलब उसमें प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी अलग है। उसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ क्योंकि उसका स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ होने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका सबसे कम साइज वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये कोवैलेंसी 5 शो नहीं करता। अब डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं बना सकता। जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना भाई, वो पाई बॉन्ड्स साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं और वो डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स के बीच में या फिर डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में भी बन सकता है, जिसे हम डी पाई बॉन्ड बोलते हैं और डी पाई और पी पाई बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर